So hello everyone, this is Dr. Samir Dhage. Today we are going to learn about pheochromocytoma. So before entering into the main topic, let's understand some basic concepts. So for the basics, we have two adrenal glands. Adrenal gland is a triangular shaped gland situated upon the kidney. What adrenal glands do? We all know the basics. Adrenal gland contains two parts, outer cortex and inner medulla. So for the basic physiological understanding, what does the outer cortex do? Outer cortex contains three layers. That is zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticularis. So these are the layers of the adrenal cortex. तो ये लेयर आउटर से इनवर्ड है. तो सबसे आउटर में है जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल में fasciculata और अंदर रेटिकुलरिस. What they secrete? Glomerulosa secrete mineralocorticoid, that is aldosterone. Fasciculata secrete cortisol, that is glucocorticoid, and reticularis secrete DHEA, that is androgens. But for our topic, we don't need cortex. We have to focus on medulla. So what medulla secrete? Medulla secrete three hormones. And what are these three hormones? They are epinephrine, non-epinephrine, and dopamine. Dopamine is also synthesized by hypothalamus. So epinephrine and non-epinephrine, we also call them as adrenaline and non-adrenaline. They are fight and fight hormones. Whenever there is stress situation, like suddenly dogs comes in front of you, or suddenly you get scared. So there is activation of our sympathetic nervous system and release of the epinephrine and non-epinephrine in the bloodstream. It increases sympathetic flow, so we get dilated pupil, perspiration, our heart rate is increased. So the cells of medulla which secrete these hormones, these cells are called as chromaffin cells. Chromaffin cells. So where from chromaffin cells are derived? They are derived from the neural crest cells. This is the embryological part. So chromaffin cells, they take the color dye. So they whenever they strain with chromium salts, they give a characteristic brown color. So strain with chromium salts. So this is about the basic physiology of the adrenal gland. So not only from adrenal gland, epinephrine and non-epinephrine also secreted from extramedullary sites. So these are the extramedullary sites. They are located at the bifurcation of the aorta at the origin of the inferior mesenteric artery. Can you able to see this yellow? These are the chromaffins bodies which are extramedullary. So what we call this? We call this as organ of Zucker-Kendall. तो इसे याद रखने के लिए हमने दो इमेजेस लगाए, जकरबर्ग और कैंडल, जो ऑर्गन ऑफ जकर कैंडल. सो ये एक्स्ट्रा मेडुलरी साइट है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की. ये एक्चुअली यूजुअली एक्टिवेट रहता है जेस्टेशनल पीरियड में, अर्ली जेस्टेशनल पीरियड में. फिर इन एडल्टहुड मतलब सीक्रेट थोड़ा बहुत करता है, इतना नहीं. सो हाउ दिस एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन गेट सिंथेसिस. तो इसका सिंथेसिस देखेंगे. तो फूड्स विच आर रिच इन टायरोसिन, तो कौन से फूड रहते हैं जो टायरोसिन रिच रहते हैं? मिल्क, पोर्क, बीफ और एक्सेट्रा टाइप के फूड जो रहते हैं, they go under the process of tyrosine hydroxylase can get converted into L-DOPA, and L-DOPA by the process of decarboxylation converted into DOPA. So we get dopamine. So ये dopamine का non epinephrine में convert होता है by dopamine hydroxylase, और फिर non epinephrine से हमको मिलता है epinephrine. तो ये सारा हो गया हमारा बेसिक फिजियोलॉजी.
एंड ये ऑर्गन ऑफ जकर कैंडल की एनाटॉमी। ऑर्गन ऑफ जकर कैंडल किधर लोकेटेड होता है? एट द बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा, ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये जो छोटे छोटे बॉडीज रहते हैं उनको बोलते हैं क्रोमाफिन बॉडीज। तो ये सब था एड्रिनल मेडुला का। और जो हमने देखे हॉर्मोन्स क्या करते, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाते, तो हमको फाइट एंड फ्लाइट स्ट्रेस सिचुएशन में हमको काम आते। तो अभी हमारा जो टॉपिक है फियोक्रोमोसाइटोमा, तो ये क्या है बेसिकली? अभी हमने जो देखा एड्रिनल मेडुला, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज एबनॉर्मल फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज नॉर्मल। तो हमको नॉर्मल पता चला कि एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन क्या करता है, बट इन सर्टन सिचुएशन देयर इज whenever there is a tumor of the adrenal medulla, तो क्या होता है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन एक्सेसिवली सिक्रेट होते हैं, तो वी गेट सम साइंस एंड सिम्टम्स। उस कंडीशन को हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। तो क्या कॉज होता है इन एड्रिनल ट्यूमर्स का या ज्यादा सिक्रेशन का एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का? तो फॉर कॉजेस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा देर आर परमानेंट कॉजेस एंड टेम्पररी कॉजेस। अभी हमने बोला कि ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला, तो किसका ट्यूमर होगा? ट्यूमर ऑफ द क्रोमाफिल सेल्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला। तो ये जो अंदर की क्रोमोफिल सेल्स है उनका ट्यूमर होता है, तो वी गेट एक्सेसिव ऑफ एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन। तो कॉजेस में परमानेंट कॉजेस पर मोस्टली जो ये ट्यूमर्स रहते हैं वो बिनाइन नेचर के रहते हैं, सो ये दूसरे ऑर्गन की तरफ स्प्रेड नहीं होते। पर फियोक्रोमोसाइटोमा में एक रूल ऑफ 10 होता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे 10% मालिग्नेंट ट्यूमर्स भी रहते हैं। तो कमिंग बैक, परमानेंट कॉजेस में ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। तो कौन से ट्यूमर होते हैं एड्रिनल मेडुला के? ट्यूमर की क्या स्पेसिफिकेशन होती है? तो ट्यूमर रहते हैं मोस्टली यूनिलैटरल रहते हैं, यूनिलैटरल, seen mostly in the third trimester, sorry, third decade of life। और जो ट्यूमर रहते हैं वो इडियोपैथिक नेचर के रहते हैं, वी डोंट नो द कॉज। और जितने भी ज्यादा केसेस है वी सीन दैट दे आर एसोसिएटेड विद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। तो ये कंडीशन क्या है? इसमें क्या होता है, इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर वेयर देयर इज म्यूटेशन इन न्यूरोफाइब्रिन 1 जीन which is located on the chromosome number 17। so mutation in neurofibromatin gene, neurofibromatin 1 gene located on chromosome number 17। इसको ध्यान में रखना। तो इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? इट इज अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर, सो वी गेट हियरिंग प्रॉब्लम्स, बोन डिफॉर्मिटी, दिस ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड एक्सेट्रा। So these are the permanent causes of the pheochromocytoma. And what are the temporary causes? So in temporary causes there is paroxysmal trigger। So कुछ टाइम के लिए एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ता है, फिर नॉर्मल होता है, कुछ टाइम के लिए फिर बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? सो फर्स्ट, ड्यू टू मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये ड्रग्स होते हैं। ये ड्रग्स किसके लिए यूज करते हैं? यूज्ड इन पार्किंसन एंड डिप्रेशन, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। सो इन ड्रग्स में क्या होता है? इन ड्रग्स में कंपाउंड रहता है टायरामिन। टायरामिन क्या करता है? ब्रेक डाउन द एक्सेस कैटाकोलामाइंस, दैट इज कैटाकोलामाइन से एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन डिराइव्ड होते हैं। तो कैटाकोलामाइंस को ब्रेक किया तो एक्सेस ऑफ एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन ब्लड में बढ़ता है। टायरामिन रिच फूड भी रहते हैं, उनसे भी अपने को पैरोक्सिस्मल इंक्रीज इन एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन दिखता है। तो टायरामिन रिच फूड कौन से रहते हैं? चीज, चॉकलेट, स्वीट चीज, चीज के अलग अलग वैरायटी। सो इनसे हमको एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ता है। सो टायरामिन एंड मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में भी क्या होता है? टायरामिन। ये ध्यान में रखो, टायरामिन इज द मेन कल्प्रिट। एंड एब्डोमिनल मैनिपुलेशन, व्हाट इज मीन बाय एब्डोमिनल मैनिपुलेशन? सो इफ अ पेशेंट कम्स फॉर सम सर्जरी वगैरह, सो डॉक्टर डूइंग सर्जरी, देयर इज मिल्किंग आउट ऑफ कैटाकोलामाइंस, देयर इज मिल्किंग आउट ऑफ एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन। सो ड्यू टू डैमेज टू दिस एड्रिनल मेडुला देयर इज तो बाहर आता है ब्लड में ऐसा एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन। सो वी कॉल दिस एज पैरोक्सिस्मल ट्रिगर। तो ये थे कॉजेस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लेके रहो।
सो मेन मेन फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या रहता है, रूल ऑफ 10 अप्लाई होता है. व्हाट इज रूल ऑफ 10 ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा? सो 10% ऑफ द ट्यूमर्स आर बिन. तो ये जो रूल ऑफ 10 है, तो 10% ऑफ द ट्यूमर आर मालिग्नेंट. 10% tumors are seen in bilaterally. So bilateral tumors, malignant tumors, 10% tumors are seen in the extramedullary sites. Ten percent tumors are associated with the familial history. So 10% tumors are bilateral, 10% malignant, 10% are extramedullary site, 10% associated with family history, 10% extramedullary site we seen, that is organ of Zucker-Kendall. 10% एसोसिएटेड विथ फैमिली हिस्ट्री. तो कौन से ऐसे डिसीज है जो फैमिलियल हिस्ट्री में एसोसिएटेड रहते? दैट इज मेन. व्हाट इज मेन? मेन इज मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया. It is a multi-endocrinal disorder where there is tumor of pituitary, parathyroid, thyroid. More specifically, it is associated with 2A and 2B. And 10% also associated with VHL. What is VHL? VHL is von Hippel-Lindau disease. Sorry if there is any spelling mistake. So what is VHL? VHL is also a genetic hereditary disorder affecting the multi-system. Please tell us in comments about this disease if you know anything. So this remaining center 10%, what is this indicates? It indicates 10% tumor seen in children's. So this is rule of 10 for the pheochromocytoma, that is 10% bilateral, 10% malignant, 10% seen in children, 10% seen at the extramedullary site, that is organ of Zucker-Kendall. And the main point, sorry I forgot the main point, whenever the tumor arises from the organ of Zucker-Kendall or any other extramedullary site, it is called as paraganglioma. 10% associated with familial history, which is associated with men. VHL पिछले स्लाइड में हमने देखा था associated with neurofibromatosis type 1. Neurofibromatosis type 1 क्या रहता है? Mutation in the gene which is called as neurofibromin 1, which is located on the chromosome number 17. What is pheochromocytoma? Tumor of the chromaffin cells. So after the etiology, physiology, now we are going to go with pathology of the pheochromocytoma and the clinical features. So I'm explaining clinical features to the pathology so you can understand it in a better way. So pathology and clinical features. So there are increase in catecholamines, epinephrine, non-epinephrine in blood. So what they do, as we saw in normal physiology, in increased stress and stress situation, these hormones are increase होते हैं. तो अभी क्या होता है? अभी ये इंक्रीज हुए तो ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स पे और ऑर्गन्स पे, जैसे हार्ट पे रहा, हार्ट पे रहते बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंड वेसल पे रहते हार्ट के अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर. सो बीटा 1 रिसेप्टर किधर रहते हैं? नोडल सेल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन पे. सो नोडल सेल पे जब ये बाइंड होंगे रिसेप्टर पे तो क्या होगा, नोडल सेल एक्टिवेट होंगे, स्टिमुलेट होंगे, तो इंक्रीज देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द हार्ट रेट, there is going to be increase in the stroke volumes. Ultimately heart rate stroke volume हुआ तो क्या होगा, there is increase in the cardiac output increase हुआ, so patient will gonna get tachypneic, he gonna get palpitation, there is increase in the blood pressure, patient start suffering from hypertension. So nodal cell hypertension, we saw that heart rate increase होता है, hypertension बढ़ता है, stroke volume होता है, cardiac output बढ़ता है, blood pressure increase होता है.
सो अब एज्यूम करो हार्ट इतना तेज पंप कर रहा है, सो इतना बीपी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, सो हार्ट नीड मोर ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट इंक्रीज। सो अगर ये डिमांड हार्ट को नहीं मिली तो क्या होने वाला है? यस, अंजाइना लाइक पेन। सो पेशेंट स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम अंजाइना लाइक पेन। तो इतना बीपी बढ़ गया, इतना बीपी बढ़ गया है, सो देर इज इन फियोक्रोमोसाइटोमा वी कॉल्ड इट हाइपरटेंशन क्राइसिस। So what is hypertension crisis? Systole by diastole BP is greater than 180 by 130. So 180 by 130. So इतना बीपी बढ़ गया तो बीपी goes straight into the brain, and so we feel headache. There is extreme headache and chances of stroke and cerebral hemorrhage वगैरह increased. So this is hypertension crisis, and we will get palpitations एंड टैकिपनिक पेशेंट। अभी अगर कॉजेस पे, अगर ये पैराक्सिस्मल कॉज होगा तो पेशेंट को जब जब एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन बढ़ेगा तब वे हाइपरटेंशन के ऐसे एपिसोड आएंगे। सो अनदर टाइप कौन सा रहता हाइपरटेंशन का जो फियोक्रोमोसाइटोमा में दिखता? सो पेशेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में वेयर पेशेंट गेट अप फ्रॉम अ लाइंग पोजीशन तो उसका बीपी चेंज होता है, बीपी ड्रॉप्स। So this is the action of the catecholamines on CVS. Now let's moving ahead on the liver. So liver पे भी क्या रहता है? बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर रहते हैं, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर रहते हैं, हार्ट पे बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर रहते हैं। सो लिवर पे जो बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर रहते हैं तो ये लिवर का फंक्शन बढ़ाते हैं। जो लिवर का फंक्शन बढ़ाते तो क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट इज एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सो ओवरऑल इन दोनों प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? वी नो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस से क्या होता है? ये ब्रेक डाउन ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। तो एंड प्रोडक्ट में वी गेट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। तो हमारे बॉडी में ओवरऑल ग्लूकोज का सर्च बढ़ता है, विच ऑल्सो वी रिक्वायर्ड। देखो अभी फाइट और फाइट स्ट्रेस सिचुएशन है, बॉडी नीड्स एनर्जी। नॉर्मली फिजियोलॉजी की बात हो रही है तो बॉडी नीड्स एनर्जी, सो वेयर इट गोना गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड वगैरह बाकी के जो प्रोडक्ट्स है सबको तोड़ के हम ग्लूकोज, तो इसलिए हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। मसल सेल, what normally in fight and flight situation happen, we get the tremors type of situation. Why we get? So muscle cell contain beta 2 adrenergic receptor. Whenever there is increase in epinephrine and non-epinephrine, they bind to this receptor and we get tremors. Activity of this muscle fiber increase and we get tremors. So these are the clinical features upon CVS liver muscle cells. So what we got tremors, we got palpitations, we got tachypneic patient, headache, angina like pain, increased blood glucose level, hypertension crisis which is greater than 180 by 130. So what we get? Headache and chances of hemorrhage. नाउ क्यूटेनियस वेसल मतलब वेसल्स ऑफ स्किन, तो वेसल्स ऑफ स्किन को भी ब्लड सप्लाई रहता है, तो उनमें क्या रहता है? अल्फा 1 एड्रीनर्जिक। अभी स्टडी ब्लड वेसल पे कौन से रहते हैं? अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या करते हैं? दे जब एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन एक्ट होते हैं तो वो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, द सिस्टमिक वैस्कुलर रजिस्टर इंक्रीजेस, तो वो छोटे हो जाते हैं। तो सिस्टमिक वैस्कुलर रजिस्टर इंक्रीज होता है तो ये एरिया में ब्लड कम फ्लो होता है। तो ब्लड कम फ्लो होता है तो स्किन को ब्लड कम मिलेगा। अगर स्किन को ब्लड कम मिलेगा तो व्हाट वी गोना गेट? पैलर। सो वी गेट पैलर। अभी हमने हार्ट में देखा था, इधर भी जब ब्लड वेसल रहते हैं उनमें अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ऑलरेडी हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई है, उसमें वेसल का ऐसा सिस्टमिक वैस्कुलर रजिस्टर इंक्रीज होना, तो दैट्स व्हाई वी गेट हाइपरटेंशन क्राइसिस। ये मेन कंसेप्ट है उसके पीछे। सो हमने देखा पैलर। अभी लास्ट का होगा नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में लिम्बिक सिस्टम बेसिकली वो क्या करता है? वी नो दैट इट इन्वॉल्व इन द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस वगैरह, वो वाले फंक्शन में।
So whenever there is increase in the epinephrine, non-epinephrine, it activates, stimulates limbic system. So what we're gonna get? Anxiety. So what type of anxiety seen in pheochromocytoma? There is fear of death. Patient gonna whenever come to OPD, he's going to be restless, anxiety, anxious. He's going to tell that he is going to die. He's feeling his headache is very very severe. Such symptoms. Increase in SNS activity. So sympathetic nervous system activity बढ़ी. So न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिल कोलिन. So सारे फंक्शन मतलब सिंपैथेटिक बढ़ते हैं. तो न्यूरो एसिटिल कोलिन का सर्ज भी बढ़ता है. सो एसिटिल कोलिन का सर्ज बढ़ गया तो क्या होगा? वो स्टिमुलेट किसको करेगा? स्वेट ग्लैंड को. अगर स्वेट ग्लैंड को स्वेट स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? देयर इज पर्स्पिरेशन. सो इंक्रीज पर्स्पिरेशन सीन इन फियोक्रोमोसाइटोमा. तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स फियोक्रोमोसाइटोमा के. सो हमने क्या क्या देखा अभी, एक बार लास्ट का रिवीजन कर लेंगे. तो सीवीएस में क्या देखा हमने? सीवीएस में टैकिकार्डिक पेशेंट, हाइपरटेंशन क्राइसिस, पाल्पिटेशंस होंगे, कार्डियक आउटपुट सब बढ़ने वाला है. लीवर में क्या होगा? लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. सो ओवरऑल एंड प्रोडक्ट इज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. मसल में क्या होगा? मसल फाइबर एक्टिवेट होंगे तो ट्रेमर्स दिखेंगे. सो ये बेसिकली इधर का हुआ. क्यूटेनियस वेसल पे सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. ब्लड वेसल, उसको ब्लड नहीं मिल पाएगा स्किन को, तो इंक्रीज देयर गोना बी अ पैलर. और नर्वस सिस्टम में लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होंगी तो लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट, फियर ऑफ डेथ विच लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ट्रबल्स में काम करता है. सो एंजाइटी होगी, सो देयर इज फियर ऑफ डेथ. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी, एसिटिल कोलिन का सर्ज बढ़ेगा, एसिटिल कोलिन स्टिमुलेट करेगा स्वेट ग्लैंड. सो अल्टीमेटली वी गोना सी पर्स्पिरेशन. सो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा. सो बुक में क्या दिखा है? मेडिसिन बाय जॉर्ज मैथ्यू. जो अभी हमने क्लिनिकल फीचर देखे जस्ट एक बार बुक से होते हैं. तो पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद एपिसोड ऑफ पैलर, फ्लशिंग, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, हेडेक, एंजाइटी. एंजाइटी में फियर ऑफ डेथ. However, sustained hypertension more common than paroxysmal hypertension. Gastrointestinal symptoms like abdominal pain, vomiting, constipation, weight loss, glucose intolerance, complication of hypertension like stroke, myocardial infarction, cardiomyopathy, left ventricular failure may be associated with multiple endocrine neoplasia type 2, MEN 2. We start specifically MEN 2 may be 2A or 2B. अभी कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. क्यों? क्योंकि हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, ऑक्सीजन डिमांड. कार्डियोमायोपैथी, जब हार्ट ज्यादा काम करता है तो एक पॉइंट पे उसके जो चेम्बर्स वो डायलेट हो जाते हैं. सो वी गेट कार्डियक मायोपैथी. और काम काम करके एक पॉइंट पे वेंट्रिकुलर फेलियर. सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इज मोस्ट कॉमन चेम्बर टू गेट फेल. So these are the clinical features of pheochromocytoma by medicine by George Matthew. सो डायग्नोस्टिक अप्रोच, हाउ आर वी गोइंग टू डायग्नोस फियोक्रोमोसाइटोमा? अभी हमने इतने सारे क्लिनिकल फीचर्स देखे, तो आपको क्या लगता है? पेशेंट, सबसे पहले तो पेशेंट आएगा. सो पेशेंट में अपने को क्या देखना है? देयर आर 5 पीज ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. 5 पीज ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. ये अगर आपको अपने को पेशेंट में दिख गए तो अपन बोल सकते हैं कि ये रिस्क पे, पूरा डायग्नोस नहीं कर सकते पर ये रिस्क पे फियोक्रोमोसाइटोमा. सो व्हाट आर दिस 5 पीस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा जो अभी हमने देखे? फर्स्ट इज पाल्पिटेशन, जो हमने अभी देखा, पाल्पिटेशन होते हैं क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है. सेकंड इज प्रेशर. व्हाट इज meant by प्रेशर? दैट इज इंक्रीज इन हाइपरटेंशन. पाल्पिटेशन, प्रेशर. तीसरा पी क्या होता है? पर्स्पिरेशन. पर्स्पिरेशन क्यों होता है? हमने देखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, एसिटिलकोलिन का सर्ज बढ़ता है, एसिटिलकोलिन स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हुए तो वी गेट पर्स्पिरेशन. पर्स्पिरेशन के बाद पेन. कौन से टाइप के पेन देखे थे अपन ने? पेन में होता है हेड पेन, एक्सट्रीम हेडेक. एंड दूसरा कौन सा पेन? जब हार्ट इतना काम करता है तो हार्ट को ऑक्सीजन की नीड होती है. सो वी गेट अंजाइना लाइक पेन. पर्स्पिरेशन को और एक टर्म है हाइपरहिड्रोसिस.
और लास्ट का पी, क्या आपको याद है कौन सा था? करेक्ट, पैलर। सो पैलर, क्या पैलर क्यों आता था? पैलर इसलिए आता था क्योंकि जो ब्लड वेस क्यूटेनियस वेसल को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है, उसके अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन बाइंड होता है, तो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो वो क्यूटेनियस वेसल को ब्लड कम फ्लो होता है, सो वी गेट टू सी पैलर। सो दीज आर द 5 पीज ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, दैट इज palpitation, प्रेशर, perspiration, पेन एंड पैलर। एक बार देख लो। नेक्स्ट, अभी अपने को पेशेंट आया, उनमें ये 5 पी अपने को मिल गए, तो अभी अपना रोल क्या है, अपन क्या करेंगे अभी? सो स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। तो स्क्रीनिंग में अपने को क्या करना है? 24 आवर्स यूरिन मेटानेफ्रिन एंड 24 आवर्स प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन चेक करना है। सो यूरिन, व्हाट इज मेटानेफ्रिन नॉन मेटानेफ्रिन? अभी देखो अपने को जो ये रहते हैं अपने इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन, ये इसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज नॉन मेटानेफ्रिन एंड मेटानेफ्रिन। तो ये कन्वर्ट किससे होते हैं? सीओएमटी। व्हाट इज सीओएमटी? कैटाकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज। कैटाकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज। तो अगर अगर अपने को यूरिन 24 आवर यूरिन टेस्ट किया अपने, और अपने को इसमें नॉन मेटानेफ्रिन मेटानेफ्रिन 3x द अपर लिमिट मिले, मतलब 3x द अपर लिमिट मिले, तो अपन बोल सकते हैं कि ये पेशेंट लो रिस्क है फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। और प्लाज्मा फ्री मतलब फ्री ब्लड में अपने को अगर नॉन मेटानेफ्रिन मेटानेफ्रिन मिले अबोव देन नॉर्मल, तो अपन बोलेंगे ये हाई रिस्क पेशेंट। तो अब ऐसे पेशेंट में क्या करेंगे? वी आर गोना डू सीटी स्कैन एमआरआई टू लोकलाइज द ट्यूमर रीजन। सो व्हाट इफ इट इज इंट्रामेडुलरी और एक्स्ट्रामेडुलरी साइट्स, और इफ एनी अदर सिम्टम मेन सिंड्रोम वगैरह पेशेंट को है क्या, वो सब अपन रूल आउट करेंगे। सो इमेजिंग में सीटी एमआरआई टू लोकलाइज द ट्यूमर। सो फाइनली मैनेजमेंट, अभी हम इस पेशेंट कैसे मैनेज करेंगे पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा के? तो मेन तो प्राइमरी यही है कि एक्सिशन ऑफ ट्यूमर इफ पॉसिबल। अगर एक्सिशन ट्यूमर निकाल सकते तो निकाल देने का, इफ नॉट पॉसिबल देन व्हाट वी डू, पेशेंट हैव टू टेक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग मीन लाइफ लॉन्ग अल्फा एंड बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग। सो वी स्टडीड इन क्लिनिकल फीचर, ये अल्फा बीटा रिसेप्टर होते हैं नोडल सेल्स पे कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन के हार्ट पे। तो अपने को ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देता है इनके एक्शन, ये डायरेक्ट। तो इनके एक्शन ब्लॉक होगी तो ये जो पाल्पिटेशन से ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज, ये नहीं होगा। बट ये फिर लॉन्ग टर्म थेरेपी है। सो अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स। So this was my time. Thank you so much for watching.